Good morning students, how are you? Today we are starting our next content of the political science, and this is the chapter number 2, and this topic is the era of one party dominance. One party dominance in the sense, after the first chapter we have seen that is the how the many of problem faced by the Indian government after the partition or at the time of independence of the India, because many of the persons wants to the separate state, many of the princely kings wants to the make their separate states, and it was the biggest challenge in front of the government of India, independent India, that how to make the format of the government, how to develop the nation, and how to handle the lot of diversity which are in India. So it was the greatest problem ki how to handle the at present situations. This is seen whenever British governments was now not in British government, or all things are in our Indian government. So how they handle the situations, many of problems of the related to the state, some of wants to the make separate state on the basis of language, religion. So there are a lot of problems. One another problem that is related to the this content, and this problem is for the democratic election, because before this Indian maximum part have covered by the British government, so they have rule according to the dictatorship. So no any part have the freedom for they rule according to their self. Either they princely state or either they are not supervised in the British government. Before the British government, we can see that is the India has divided into many princely part, and which is ruled by the according to the monarchical system. But now after independence, it was the greatest question ki how did the Indian government system and how we will govern on the India. There should be a monarchical, there should be a democratic way. So first of all, where there is a democratic way, so there should be a many of political party. There should be a process of the election which is based on the universal franchise. Everyone have right to vote. In at the time of independence, everybody knows that is the situation was not a favor, because lot of crowd of the people was gathered on one place. So how to handle on this at the time ki people को कैसे handle किया जाए, कैसे elections कराए जाए. So it is a greatest task in front of the India. So many of person have suggested to adopt the monarchical system. Many of person have suggested to the adopt a democratic system. So जैसा भी हमने बात किया कि अगर डेमोक्रेसी को हम अडॉप्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी, एंड दैट इज द इलेक्शन. इलेक्शन को किस तरीके से कराएं, इतनी सारी जो भारत की जनता है उसको एक प्लेस पर कैसे इकट्ठा करें, उस पब्लिक को किस तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, किस तरीके से उनको एक इलेक्शन की बॉडी है, कौन सी बॉडी है जो उसको इलेक्ट करे. जैसे इलेक्शन कमीशन सारे इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसीजर्स करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था. सो लेट अस सी वन बाय वन द चैलेंजेस ऑफ द बिल्ड डेमोक्रेसी. अब देखिए हमारे जो टॉपिक का नाम है दैट इज द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. दैट इज द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब होता है एक ही पार्टी का डोमिनेंस, प्रभुत्व. और आपको सबको पता है वो एक ही पार्टी थी, दैट इज द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी. ओके, अगर ऐसा है तो देयर इज नो डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी अगर हमें स्थापित करना है तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे. तो आवर क्वेश्चन इज चैलेंजेस फर्स्ट, दैट इज द चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी. यानी अगर इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाना है तो उसके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी. तो सबसे पहले हम बात करें कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, सो इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी द चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट टू द बिगिनिंग.
Faced by the such serious challenges, leaders में other countries, the world decided that the country could not afford the democracy. They said that the national unity is the first priority. तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि हमारा जो कंट्री है वो यूनिटरी बेस्ड होना चाहिए, यानी कि हमारा जो कंट्री है उसकी जो पहली डिमांड है दैट इज द यूनिटी, कि एकता होनी चाहिए. ओके, सो ऑन दिस बेसिस तो मैनी ऑफ पर्सन्स गाइडेड कि इनको मोनार्की ज्यादा सही रहेगी. सो देयरफॉर मैनी ऑफ कंट्रीज हैव गेन द फ्रीडम ऑफ कॉलोनिज्म, एक्सपीरियंस द नॉन डेमोक्रेटिक रूल. क्योंकि जो हमारा कंट्री था वो डीकोलोनाइज हुआ था. डीकोलोनाइज होना यानी कि आजाद हुआ था. कॉलोनी था पहले ब्रिटिशर्स की, उसके बाद वो डीकोलोनाइज हुआ था. तो कौन सा सिस्टम है हमें सबसे बेटर रहता है? नॉन डेमोक्रेटिक. So there is a nominal democracy but effective control by the leader, one party rule or direct RB rule. Non-democratic regimes always start with the promises of the restoring democracy very soon, but once they are established themselves, it is very difficult to diagnose. यानी कि अगर एक बार नॉन डेमोक्रेटिक शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया? नॉन डेमोक्रेसी. तो बताइए क्या इसको रिप्लेस करना इजी होगा? इजी और नॉट? क्या इसको रिप्लेस करना इजी होगा या नहीं? नो, इट इज नॉट. ओके, सो फिर हमारे सामने क्या कंडीशन थी, यानी कि अगर हम बात करें तो उस समय इंडिया में क्या कंडीशन थी? तो इंडिया में कंडीशन थी दैट इज द मोर डिफिकल्ट पथ, अनदर पथ हैव टू द बीन सरप्राइजिंग. द फ्रीडम स्ट्रगल वाज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. तो हम बात करेंगे जो हमारा आइडिया था, द आइडिया वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी. यानी कि हमने जो इंडिपेंडेंटली उसका क्या बेस था? उसका बेस ये था कि हम जो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे उसका बेस क्या होगा? डेमोक्रेसी. सो आवर लीडर्स वर कॉन्शियस द critical role of the politics in the democracy. So they did not see the politics problem. They saw the solving the problem. So every society need to decide how to it will govern and regulate so itself. So there are very different policies, alternative choose them. There are different group and the different conflicts or aspirations. यानी कि उस टाइम हमारे पास क्या थे? डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट एस्पिरेशंस थी. एस्पिरेशन इन द सेंस लोगों की इच्छाएं अनंत थी, हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा था. तो हाउ दिस क्वेश्चंस व्हाइल द कंपटीशन एंड पावर ऑफ द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट द पॉलिटिक्स. सो द पर्पस वाज पॉलिटिकल एक्टिविटी इज नॉट शुड बी द डिसाइडेड बाय द परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट. दिस इज द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक. और इस तरीके से हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि किस तरीके से इस रूट मैप को प्रिपेयर किया जाए. ओके, सो इट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया या इंडियंस लीडर. ओके, नाउ we have clear in the previous lectures कि our Indian Constitution was adopted in 26 November 1949. देखिए our Constitution adopted या accepted which date? 26 November 1949. Remember this, adopted or accepted. Okay, signed by यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर होता जिसपे 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे. यानी कितने मेंबर्स ने किए थे? 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे. वो कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को. 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने सिग्नेचर करे थे? 284 मेंबर्स ने. बट इट केम टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. यानी इफेक्टिव या इम्प्लीमेंट.
कौन सी डेट को हुआ है? 26 जनवरी 1950। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और हमने वेट किया है 2 महीने का पूरा 26 नवंबर से 26 दिसंबर एंड 26 जनवरी 1950। तो पूरा 2 महीने हमने वेट किया था। और इस वेट के पीछे एक आपको पता ही होगा, दैट इज द पूर्ण स्वराज दिवस बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस का डिक्लेरेशन किया था लाहौर अधिवेशन में। तो इसलिए वो तब नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने वेट किया था 26 जनवरी 1950 का कि हम उस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो एट द टाइम द कंट्रीज टू बीइंग रूल्ड बाय द इंटीग्रिम गवर्नमेंट। और तब तक किसने रूल किया था? दैट इज द इंटरिम गवर्नमेंट, आंतरिक सरकार। और इंटरिम गवर्नमेंट कब बनाई गई थी? इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी 1946 में, जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। कि किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए एक असेंबली बनाएगी एंड आफ्टर दैट दे विल prepare the constitution. So it was now necessary to install the first democratically elected government of the country. तो उस टाइम एक ज़रूरी था कि अब हमारे पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। The constitution had laid down the rules. Now the mechanism had to be put the place. Initially it was thought that the only a matter of few months. The Election Commission of India set up in January 50. यानी कि इसके लिए अब इलेक्शंस कराए जाएंगे। सो इलेक्शन कमीशन सेट अप इन इंडिया 1950। कौन से ईयर में सेटअप किया गया है? 1950 में। और इसके जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुकुमार सेन। फर्स्ट इलेक्शन commissioner, that is the सुकुमार सेन। ओके, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द कंट्री फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950 itself। और फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया दैट इज 1950 से 1951। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ही 1950 में बना है ना, तो एकदम से 50 में इलेक्शन हो जाए, 50 में ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, तो यह पॉसिबल नहीं था। तो क्या था, जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत लंबा चला था। इलेक्शन प्रोसेस लंबा इसलिए भी चला था क्योंकि अभी हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो हमें एक लिस्ट भी प्रिपेयर करनी थी और लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें मेंबर्स को भी सेट करना था कि किस तरीके से कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो बहुत सारा यानी कि काम बाकी था। तो इस तरीके से हमारे लिए एक टफ प्रोसेस था उस टाइम इलेक्शन कराना। और उस इलेक्शन में अप्रोक्स कितने डेज का टाइम लग गया था? बहुत ज़्यादा। क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराए, इट वाज नॉट इजी। क्लियर? किसके लिए? कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ द कंट्री इट वाज होल्डिंग इलेक्शन रिक्वायर्ड द डेलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्री। डेलिमिटेशन का मीनिंग होता है बाउंड्रीज तय करना। ड्रॉ द बाउंड्रीज। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो डेलिमिटेशंस का हेड होता है उसका उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट। ओके, बट ऑन दैट टाइम कि इट वाज नॉट इजी कि अभी तो हमें इंडिया को क्या करना है? डेलिमिटेट करना है, ड्राइंग द बाउंड्रीज, और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बनानी है।
और हमें क्या बनानी है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि निर्वाचन के लिए हमें कुछ एरियाज भी बनाने हैं, कुछ क्या बनानी है, एरियाज बनाने हैं। इसके अलावा हमें क्या करना था, हमें एक लिस्ट भी प्रिपेयर करनी थी, यानी कि इट इज आल्सो रिक्वायर प्रिपेयर फॉर द इलेक्शन रोल और द लिस्ट ऑफ द सिटीजन, लिस्ट ऑफ द सिटीजन्स। हमें सिटीजन्स की लिस्ट भी बनानी है जो क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, वोट के लिए। सो बोथ दिस टास्क ऑफ द टाइम, यानी कि बहुत बड़ा टास्क था। सो व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स वर पब्लिश्ड that discovered the name of nearly 40 lakhs women were not recorded on the list, यानी कि अप्रॉक्स 40 lakhs women's के नाम तो उसमें लिस्ट में थे ही, not mentioned। ओके, यानी कि 40 लाख महिलाओं के तो नाम ही नहीं थे। और इन महिलाओं के नाम पता है कैसे आई सेट किए, दैट इज द वाइफ ऑफ डैश, डॉटर ऑफ डैश, यानी कि ये इसकी बीवी है, ये इसकी बेटी है, इस तरीके से इनके नाम सेट किए गए। सो द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एंट्रीज एंड ऑर्डर टू द रिविजन ऑफ पॉसिबल टू द डिफेक्शन ऑफ नेसेसरी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, अब इनको रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। रिफ्यूज यानी कि मना कर दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो इतने बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर इलेक्शन कराना नॉट पॉसिबल। सो एट द टाइम द 70 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हु हैड टू अबाउट द, उस टाइम कितने वोटर्स थे, लगभग 17 करोड़। 1951 में टोटल वोटर्स कितने थे, 70 करोड़। ये हमें याद रखना है। कितने करोड़ थे, 17 करोड़ थे, जिसमें से 3200 तो क्या थे, एक तरीके से MLAs, 3200 MLA जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थे, और 489 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, और 489 फ्रॉम लोकसभा। Okay, only 15% of the eligible were literate, और कितने प्रतिशत लोग लिटरेट थे, 15% people were literate। लिटरेट यानी कि साक्षर। अब देखिए ऐसी कंट्री का सीन आप इमेजिन करके देखिए अपने माइंड में कि 17 करोड़ की जनसंख्या, आज हम कितने हैं, 135 करोड़। तो 1950 और 51 में करीब पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। तो उसमें से भी कितने परसेंट लोग लिटरेट थे, कितने MLAs और MPs थे, एंड कि द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक द स्पेशल मेथड फॉर द वोटिंग। द इलेक्शन कमीशन ट्रेन टू ओवर द कितने लैक्स, 3 lakhs, over 3 lakhs ऑफिसर्स टू पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या करा है, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को, 3 lakhs पीपल या ऑफिसर्स हैव ट्रेन्ड फॉर इलेक्शन। इलेक्शन के काम को कराने के लिए लगभग 3 लाख लोगों को ट्रेंड किया गया है। सो इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ कंट्री फॉर द इलेक्ट्रेट दैट द इलेक्शन अनयूजुअल, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इज इन अ पुअर और इलिटरेट कंट्री। तो एक एक्सपेरिमेंट का जैसा था, कि हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि हम पहली बार इलेक्शन करा रहे हैं, तो इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। क्या था हमारे लिए, एक्सपेरिमेंट। क्यों था एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये हमारा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ओके, कि ऐसे पुअर और इलिटरेट में हम कैसे इलेक्शन करते हैं। द डेमोक्रेसी एक्सरसाइज ओनली द प्रॉस्पेरस कंट्री, मेनली द यूरोप और नॉर्थ अमेरिका।
और उस टाइम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे ऐसे कंट्रीज थे जो बहुत ज़्यादा प्रेस्पोरियस थे, बहुत ज़्यादा समृद्ध देश थे। ओके, सो देयरफॉर इलेक्शन देन तो नियरली एवरीवन वाज लिटरेट, जहाँ पर सब कोई पढ़े लिखे हैं। एंड बाय द मेनी कंट्रीज यूरोप हैड नॉट गिवन द वोटिंग राइट्स फॉर ऑल वुमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जबकि यूरोप में तो क्या हो गया कि बहुत सारे देशों ने विमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया था, देखिए 1950 तक, और ऐसे में इंडिया ने अपने यहाँ की जो विमेन्स हैं उनको राइट टू वोट दिया है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है अपने यहाँ की महिलाओं को राइट टू वोट देना। तो देखिए कौन ज़्यादा डेवलप हुए, हम या यूरोपियन? नो डाउट हम ना, कि हमने हमारे यहाँ पर महिलाओं को राइट टू वोट सबसे पहले दे दिए। ओके, तो ये एक बहुत बढ़िया सीन है हमारा कब तक का, 1950 का। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने, जस्ट लुक एट केयरफुली। ओके, नाउ in the next segment, that is the approval, very bold and the risky. The Indian editor called the biggest gamble in the history. एक इंडियन एडिटर ने इसको क्या कह दिया? इंडियन एडिटर, एक इंडियन एडिटर है, उसने इस इलेक्शन को क्या कह दिया? देखिए, दैट इज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। द बिगेस्ट ही है ना? यस, बिगेस्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऐसा गेम जो ऐसा कहला जाना है जहां पर कोई सिस्टम नहीं है। सो ऑर्गेनाइज अ मैगजीन रोड द जवाहरलाल नेहरू वुड लाइव टू द कन्फेस एंड द फेलियर। यानी कि उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने एक ऑर्गेनाइजर नाम की बुक में, किसमें लिखा है? ऑर्गेनाइजर। अंडरलाइन दिस और बहुत अच्छे से आप याद रख लिए, ऑर्गेनाइजर क्या है? एक मैगजीन। किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके राइटर कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजर मैगजीन के राइटर कौन है? मतलब एक मैगजीन में इन्होंने कुछ लिखा है। सो वुड लाइव ऑफ कन्फेस द फेलियर ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया। यानी कि उन्होंने लिखा है कि अपने जीवित रहते हम देख लेंगे कि भारत में यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइजी है वो क्यों अनसक्सेस रहा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विच मैगजीन? ऑर्गेनाइजर। ओके, उसमें किसने लेख लिखा है? दैट इज द पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि उन्होंने कहा है कि हमने एक बहुत बड़ा गेम खेला है कि हमने अपने यहाँ पर विमेन्स को भी राइट टू वोट दिया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को यूज किया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ओके, अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस क्लेम दैट द फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल द astonishment and the absurd force regarding to the votes of the million illiterate people। यानी कि उस ब्रिटिश एक जो सिविल सर्विसेज का मेंबर था उसने क्या कहा है? देखिए कि हमने बहुत सारे इलिटरेट पर्सन को वोटिंग जैसे एक्ट करते देखा है। यानी कि पहली बार यहाँ पर क्या था? ऐसे पर्सन्स को राइट टू वोट दिया था जो पर्सन्स इलिटरेट थे। आपको अगर आपकी 9th की बुक्स याद हैं, 10th की बुक्स याद हैं, तो उसमें आपको पर्सन्स पता है ना, एक्टिव पर्सन्स, पैसिव पर्सन्स। दोज दे आर लिटरेट, जो पैसे वाले थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को राइट टू वोट था। लेकिन जो बेचारे पुअर थे, जो पैसिव पर्सन थे, उनको राइट टू वोट नहीं था, विमेंस को भी नहीं था। और अभी अभी हमने जैसे बात करी है कि यूरोप में विमेंस को राइट टू वोट बहुत बाद में मिले।
तो उनके लिए तो एक बड़ा ही स्ट्रेंज सीन था, उनके लिए एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न था कि अहो इंडिया में ऐसा होने जा रहा है कि वो इंडिया जो कल तक हमारे सुपरविजन में था, आज वहां पर इलिटरेट पुअर पर्सन राइट टू वोट कर रहे हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके, सो in the next paragraph we will see the election had to the postponed it twice, finally held from October 1951 and to February 1952। देखिए जो कि 50 से शुरू हुए थे, अक्टूबर 1951 में फर्स्ट इलेक्शन कब से शुरू हुए हैं? अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952, फेब 1952। और अभी हमने जो पहले बताया था कि ये कब से शुरू हो गए थे, 1950 से। लेकिन बट द इलेक्शन इज रेफर टू एज द 1952 इलेक्शन। लेकिन इसको कैसे रेफर किया जाता है? इट रेफर 1952 इलेक्शन, यानी इसे कब का इलेक्शन कहा जाता है? 1952 का। यानी कि अब आपसे पूछा जाएगा पहला आम चुनाव कब हुआ इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? 1952 में। और देखिए जिसकी प्रोसेस कब से शुरू हो गई थी? 1950 से, जब इलेक्शन कमीशन बनाया था। और कब समापन हुआ है? फरवरी 1952 में। So it took 6 months for the campaigning, polling and the counting to be completed। अगले 6 महीने यानी कि फरवरी के बाद के 6 महीने किस में ले लिए? कैंपेनिंग, फिर है रोलिंग इन द सेंस लिस्ट प्रिपेयर करना, ओके, एंड द काउंटिंग, और लास्ट में उसकी काउंटिंग करना। ये सारे प्रोसेस किसके होते हैं? दिस प्रोसेस आर रिलेटेड टू द इलेक्शंस। काउंटिंग टू बी कंप्लीटेड, इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव, देयर वर नो एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स ऑफ ईच सीट। यानी कि हर सीट के लिए कितने दावेदार थे? ईच सीट हैड 4 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स थे? एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स थे, ओके। The level of participation was encouraging, more than half of the eligible voters turned out the vote day to election. So when the results were declared, these were accepted as a fair even by the losers. The Indian experiment had proved the critics wrong। यानी इंडियन एक्सपेरिमेंट ने शो कर दिया कि जो इसकी आलोचना कर रहे थे वो गलत है। यानी हमारा जो ये इलेक्शन है वो क्या रहा? सक्सेस रहा। यानी कि जो ब्रिटिशर्स सिविल सर्विस के मैन थे जिन्होंने इसको क्या कहा कि ये अनपढ़ लोगों का एक ऐसा फर्स्ट इलेक्शन है, या एक इंडियन एडिटर ने कहा था कि ये फर्स्ट गैम्बल है, उन सबको ये क्या प्रूव कर दिया कि यस यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। हमने ये देखो कर दिखाया, इतने बड़ी पॉपुलेशन का इलेक्शन कर दिखाया। दिस इज द बिगेस्ट टास्क, ओके। नाउ द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड द पोल्स हैव द confounded all the aspects with through the introduction of the adult franchise to risky and the experiment to the country। और ये भी कहा कि adult franchise जो बहुत risky हो सकती है। The Hindustan Times claimed that there is a universal agreement that the Indian people conducted themselves admirably in the largest experiment in the democratic election in the history of the world। यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या दे दिया? जो उस टाइम की एक न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या अपना स्टेटमेंट दिया है कि देयर इज अ यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट इज द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमायरली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी इट इज अ लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्शन फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा लार्ज एक्सपेरिमेंट है, ओके। एंड दैट इज ओवर ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली
impressed. India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. यानी कि the election of 1952 create a history या लैंडमार्क या माइलस्टोन, एक मील का पत्थर साबित हुए। किसके लिए? इलेक्शंस। किसके लिए साबित हुए? कि इतने बड़े कंट्री में इजीली इलेक्शन कराना हमने बहुत अच्छे से करके दिखाया है। क्या वर्ल्ड में एक लैंडमार्क बन गया हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. It was no longer possible to argue that the democratic election could not be held in the condition of poverty or the lack of education. लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी और इतनी ग्रांड पॉपुलेशन को संभाल के रखना कोई इजी काम नहीं है, पर फिर भी हमने ये कर दिखाया है. So could not be held the condition of poverty and lack of the education. It proved that the democracy could be participated anywhere in the world. कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है, और इस तरीके से ये करके दिखाया. सो these are the task of the Indian government in front of the first independent election. तो यहाँ पर हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होगा कि what was the task of in front of independent India government for the first democratic election. तो आपको पूरा एक ये पैराग्राफ की समरी लिखनी है. मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ. The major task in front of Indian government after independence for first democratic election. Okay? तो आपको सब कुछ लिखना होगा कि बहुत सारे पब्लिक ने इसको नेगोशिएट किया था. वर्ल्ड्स के इन पर्सन ने इसके बारे में ऐसे ऐसे कमेंट किए थे. इलिटरेट पीपल्स थे, पुअर पॉपुलेशंस थी, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ क्राउड था, प्लस बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नेगेटिव वे में देख रहे थे. आफ्टर दिस सर्कमस्टेंसेस, यस वी हैव डन, हमने कर दिखाया. दुनिया के सामने एक हमने माइलस्टोन क्रिएट करा, एक लैंडमार्क क्रिएट किया, एक नई हिस्ट्री बनाई कि इंडिया भले ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बटा हुआ देश है, बट फिर भी यहाँ पर एक ऐसा क्या बोलते हैं स्पिरिट है, लोगों में एक जज्बा है कि ये कंट्री को यूनिफाइड करके रखना जानते हैं. और एटलीस्ट वो करके दिखाया. जो प्रोसेस 1950 में शुरू हुआ, एटलीस्ट फरवरी 1952 में वो एंड हो गया और फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे सामने आ गई. और आपको पता है तभी से जो गवर्नमेंट आई है, दैट इज द कांग्रेस गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट? कांग्रेस गवर्नमेंट. जो कि मेजॉरिटी में आई थी उस टाइम. और आपको पता ही है कि फर्स्ट पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट पीएम. यानी इस इलेक्शन में जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू. और इस तरीके से फर्स्ट गवर्नमेंट हमारे सामने ये तैयार हो गई थी. ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, दैट इज द कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन. यानी कि जो पहले 3 जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें किसका डोमिनेंस रहा था? कांग्रेस गवर्नमेंट का. सो वी विल क्लियर अबाउट वन बाय वन, बट फॉर टुडे इट इज एनफ कि आज हमने इतना ही किया है. और यहाँ हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने फेस करी थी फर्स्ट इलेक्शन को करवाने में. कौन कौन से लीडर्स थे, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्या क्या प्रॉब्लम उनके सामने आई थी. तो बहुत सारे इसमें स्मॉल क्वेश्चंस हैं. सो मैं आपसे कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, प्रिपेयर अ स्मॉल क्वेश्चंस इन द नोट्स फॉर्म. इट विल प्रोवाइड हेल्प फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, सो देयर इज अ वेरी लैक ऑफ प्रोसेस फॉर द वेरी शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन. यानी लॉन्ग क्वेश्चन का प्रोसेस इसमें कम है एज कम्पेरेटिवली. अगर आपने देखा होगा तो स्मॉल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है.
and all questions are related to your board exam and related to your competitive exam. So read it very carefully, attentively and इसको बहुत लंबे टाइम तक याद करके चलिए, आपको ये बहुत हेल्प पहुंच जाएगा. So students, do your work properly and regularly. So take care. Goodbye. Any problem then you can consult me. Okay, take care.